क्लास में। हमने शायद लुब्रिकेशन डिस्कस किया था, ये टाइप्स ऑफ लुब्रिकेशन, इफ आई रिमेम्बर। ललित, हाँ सर, लुब्रिकेशन और जनरल बियरिंग था। नहीं मतलब टाइप्स ऑफ लुब्रिकेशन डिस्कस किया था या टर्मिनोलॉजीज ऑफ जनरल बियरिंग, क्या डिस्कस किया था? हमको लग रहा है टाइप्स ऑफ लुब्रिकेशन डिस्कस किया था हमने। क्या नोट्स वगैरह कुछ है आपके पास? हाँ सर, चेक कर रहा हूँ सर अभी। जरा चेक करो, देखो, बताओ लास्ट क्या, एक दो हेडिंग्स क्या लिखी हुई है, बस हम उससे अंदाज लगा लेंगे। कहाँ है बाकी लोग, नहीं आए अभी तक? सर ये लुब्रिकेशन ही चल रहा था, हाइड्रोस्टैटिक लुब्रिकेशन, ये सब जो था। हाँ बस ठीक है, लुब्रिकेशन लुब्रिकेशन सर। ठीक है, आज जनरल बेयरिंग शुरू करेंगे आज। ठीक। अभी क्या सोमन साहब की क्लास चल रही थी क्या? हाँ सर, ली थी उन्होंने क्लास। हाँ, असल में बीच में हम एक फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम में एंगेज हो गए थे और उसका इतना ज्यादा वर्क प्रेशर रहता था कि क्लास ही नहीं हो पाई। लगभग हमारी 20-25 दिन क्लास नहीं हुई, एक महीना लगभग निकल गया। हो सकता है कुछ संडे वनडे में मेकअप क्लास अरेंज करनी पड़े, बताएंगे अगर जरूरत पड़ेगी। आप लोग अटेंडेंस चैट बॉक्स में एंटर नहीं करें, लास्ट क्लास के एंड में हम अटेंडेंस ले लेंगे। यस सर। स्लाइड इज विजिबल सर, ट्रेनिंग टर्मिनोलॉजी तक पढ़ाए थे आप। हेलो, कोई कुछ बोल रहा था।
E upon C. E upon C will be the eccentricity ratio, that is C minus H naught upon C1 minus H naught upon C. Attitude angle. The angle that the line of centers makes with the direction of the load is called the attitude angle. This is the attitude angle. Arc length you can calculate by the bearing angle. So bearing angle upon 360 multiplied by pi d, that will be giving you the load carrying length of the bearing measured in the circumferential direction, is known as the arc length. Average pressure. It is the bearing pressure computed on the basis of the projected area. Projected area, that is whatever the diameter multiplied by length, that will be giving you the projected area. अगर सिलेंडर को कट कर दें तो इंटरनल एरिया जो आप कैलकुलेट करेंगे वो लेंथ बाय डायमीटर से ही करेंगे ना, हाफ ऑफ द सिलेंडर का इंटरनल एरिया, सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय लोड डिवाइडेड बाय दैट एरिया विल बी गिविंग यू द बेयरिंग प्रेशर. Also the average pressure. So these are some important terminologies which we will be using and important from the subject point of view. Now we are going to come on a very important relation which is known as the Petrov's relation. An equation which was given by a scientist known as the Petrov's. On his name, an equation was literally named as the Petrov. So Petrov equation is one of the very important equation for the general bearing. Now here firstly you refer this diagram, the two views, front view or end view of the general bearing. So this is your general and this is your bearing. Outer is the bearing. From here you are putting the oil and weight, whatever is coming here, accordingly you are going to get the reaction. This is the total length. This is the total length. This is small r is the radius of the general. Then this is the capital R will be the radius of the bearing. Difference it will be giving you the clearance W. Weight clearance C. Weight W is acting downward. Now here at the end you can see. Here at the end it is shown here the outer radius, inner radius, and the weight is shown here. Now it is rotating with RPM, and general is rotating with speed NJ, and linear velocity will be U. Linear velocity will be U. The sharing linear velocity will be U. So here you refer the text. The phenomena of the bearing friction was first explained by the Petrov's using the assumption that the shaft is concentric. क्या मतलब है कि practically it is theoretically it is assumed that the C on this side and C on this side is same. Practically, which is not possible. Because C on this side will be the smaller as compared to the C on the top. C at the bottom will be smaller as compared to the C on the top. Because here you will be getting the minimum film thickness. Because of the weight and other things, always it will try to go downward. But Petrov's assume that both C are the same. That means he assumed that the center of the general and center of the bearing is same. Petrov's method of analysis is important because it defines the group of dimensionless parameters, and because of the coefficient of friction predicted by this law turns out to be quite good even when the shaft are not concentric. उसने assumption लेके ड्राइव कर दिया और बाद में इसको नॉन कॉन्सेंट्रिक पे टेस्ट किया गया तो वहां भी ये पाया गया कि ये ला फुल्ली वर्क कर रहा है. चलें देखें क्या है ये ला. Let us see. Now consider the shaft rotating
in a guide bearing, it is assumed that the bearing carries a very small load, that clearance space C is completely filled with oil and leakage is negligible. We denote the radius of the shaft by R, clearance by C, length of the shaft by L. Dimensions are taken in millimeter. If the shaft rotates, let us say, n revolution per second, its surface velocity क्योंकि अल्टीमेटली वो रबिंग कर रही होगी फ्लूइड से, लुब्रिकेशन से, लुब्रिकेशन के ऊपर जो सरफेस वेलोसिटी आ रही होगी, लेट अस टू u is equal to 2 pi n millimeter per second. Since the shearing stress in the lubricant is equal to the velocity gradient times of the viscosity, न्यूटोनियंस लॉ में फ्लूइड मैकेनिज्म में आपको पढ़ाया गया होगा. तो टाउ अगर हम लें F upon A, which is also टाउ is equal to mu upon h, ये होता है, पढ़ाया गया होगा आपको. Tau is equal to mu upon h. Since the shearing stress in the lubricant is equal to the velocity gradient of the viscosity, mu viscosity, velocity gradient h, so you can write it like 2 pi Rn upon C. Two pi mu, you see here, u is equal to 2 pi n. Mu you can write and C and H. So H can be taken as C upon R. Velocity gradient is h. So which has been equated here. You see radial clearance C has been substituted for the velocity for the distance h, जिसको ये velocity gradient कह रहे हैं यहाँ पे, h को उसको हम C से रिप्लेस कर रहे हैं. The force required to shear the film is the stress times area. So the torque, ये जो आपका है यहाँ पे, will be multiplied by lever arm times so from here you can see it. This is the tau. Tau A will be the force. ये फोर्स है टाउ ए, तो इसको मल्टीप्लाई कर दें अगर हम आर से, तो इट विल बी ए टॉर्क. It will be a torque. You put the value of the tau, फिर A, that is 2 pi r L R. So you are going to get 4 pi square L mu n upon C. If we now designate a small force on the bearing W, Newton, and then the pressure P in Newton per square meter, projected area P
So this will be P upon W upon 2 RL. The frictional force will be the FW. The frictional force will be the FW, where F is the coefficient of friction. So the frictional torque, that will be the FW into R. तो F W को फिर उन्होंने लिख दिया मल्टीप्लाई करके P2RL into R. So this you see here that again you are going to get a torque equation 2R square FLP. So equate the equation number 7 and 8 because both are the torque. Substitute the value of the torque from the equation 8 to the equation 7. You solve it for the friction. The friction के लिए solve करते हैं तो ये इस तरीके से बन के आ जाती है 2 pi square mu NR upon PC. The equation 9. This equation is equation 9 and equation 9 is known as the Petrov equation. Equation 9 को Petrov equation कहा जाता है and was the first published in 1883. The two quantities इसके अंदर देखिए दो quantities निकल के आ रही हैं, एक mu n upon P, एक R upon C. ये बहुत important quantities हैं, mu n upon P and R upon C. Are very important parameters in the lubrication. Substitution of the appropriate dimension in each parameter will show they are not arc. यहाँ पे R होना चाहिए. They are dimensionless. mu n upon P and R upon C. R upon C तो दिख ही रही dimensionless है और mu n upon P भी dimensionless होगी. Here the quantity of R upon C is called the radial clearance ratio. R upon C is called the radial clearance ratio. If we multiply both sides, R upon C से अगर दोनों तरफ multiply कर दें तो F R upon C और फिर ये इक्वेशन को हम इस तरह से लिख देते हैं 2 pi square S और S को इक्वेट कर रहे हैं हम इससे यहाँ पे एस आर स्क्वायर अपन सी होल स्क्वायर म्यू एन अपन पी, इसको हम समरफील्ड नंबर कहते हैं. यहाँ पे इसको लिखे 2 पाई स्क्वायर को बाहर निकाल लिया तो म्यू एन अपन पी आर स्क्वायर आर अपन सी होल स्क्वायर को एस से रिप्लेस कर दिया. तो हियर एस इज डिफाइंड एज द बेयरिंग कैरेक्टरिस्टिक नंबर और समरफील्ड नंबर. एस इज आर अपन सी होल स्क्वायर म्यू एन अपन पी, इसको हम समरफील्ड नंबर कहते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर इन जनरल बेयरिंग और स्लाइडिंग कॉर्डेड बेयरिंग. समरफील्ड नंबर S is equal to R upon C mu n R upon C whole square mu n upon P. R is the general where R is the general radius in millimeter, C is the radial clearance in millimeter, mu is the absolute viscosity in Pascal second, n is the significant speed in revolution per second, P is the load per unit area projected area मेगा पास्कल. ये बेयरिंग कैरेक्टरिस्टिक नंबर है. वैसे तो ये भी डायमेंशनलेस आता है. तो इक्वेशन 9 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. अगर आपसे कहा जाए ड्राइव द पेट्रॉफ इक्वेशन तो आप यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, इक्वेशन 9 तक ला के रोक देंगे. और अगर आपसे कहा जाए कि समरफील्ड नंबर भी डिस्कस कीजिए तो समरफील्ड नंबर फिर ये आप लेकर आएंगे. इज इट क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जनरल बेयरिंग के अंदर, पेट्रॉफ इक्वेशन और फिर समरफील्ड नंबर की डेरिवेशन और इसका सिग्निफिकेंस. समरफील्ड नंबर इज डायमेंशनलेस, वेरी इंपॉर्टेंट नंबर, आल्सो नोन एज द बेयरिंग कैरेक्टरिस्टिक नंबर. वी ऑलवेज यूज दिस नंबर टू डिफाइन द जनरल बेयरिंग. यू विल सी हाउ यू आर गोइंग टू यूज इन द डिजाइन ऑफ द जनरल बेयरिंग और द इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस ऑफ द समरफील्ड नंबर इन द जनरल बेयरिंग. Now coming to the next topic, that is stable and unstable lubrication. Coming to the next topic, stable and unstable lubrication. यहाँ तक समझ में आया भाई? हेलो, ये चीज पेट्रॉफ इक्वेशन समझ में आ गई? बहुत इंपॉर्टेंट है. हर साल या हर अल्टरनेट ईयर्स में पेट्रॉफ इक्वेशन आपसे पूछी जाएगी एग्जाम में. सर इक्वेशन 7 में आर स्क्वायर छोटा क्वेश्चन क्या हुआ? इक्वेशन 7 में आर स्क्वायर हुआ है सर. इक्वेशन 7 में क्या छूट गया है? आर स्क्वायर इक्वेशन 7 में नहीं है. हाँ, इक्वेशन 7 में आर स्क्वायर में से इसको लिखा जाएगा. यहाँ पे छूट गया ये.
इक्वेशन 7 में यहाँ पे आर क्यूब होगा। आर क्यूब कैसे होगा? आर स्क्वायर होगा, आर क्यूब कैसे होगा भाई साहब? दो ही आर तो हैं। सर 3 है, 2 पाई आर है, हाँ 3 है, 3 आर है, ठीक है 3 आर है, 3 आर क्यूब होगा। और तभी आप जब इसको सॉल्व कर रहे हैं 7 और 8 को अगेंस्ट में ला के, तब एक आर बच रहा है आपका, एक आर बचेगा, 2 आर कैंसिल हो जाएंगे। ये आर स्क्वायर यहाँ पे है, यहाँ पे आर क्यूब होगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक आर बचेगा, वो आर इक्वेशन 9 में अपियर हो रहा है। ठीक है, उसको लिख लीजिएगा आप, आर क्यूब इक्वेशन 9 में। So now let us start the next topic, and again this is very important topic. इसको समझने की जरूरत है, important from the subject point of view and examination point of view, from the both point of view. तो अब हम यहाँ पे पहुंच गए, पेट्रॉफ इक्वेशन के थ्रू हमने ये निकाल लिया था, फ्रिक्शन इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर म्यू एन अपॉन पी आर अपॉन सी, ये पेट्रॉफ इक्वेशन के थ्रू हमने निकाला था। तो इसको हम अगर इस तरह से प्लॉट कर दें, फ्रिक्शन वर्सेस म्यू एन अपॉन पी, फ्रिक्शन वाई एक्सिस पे लिया और म्यू एन अपॉन पी को हमने एक्स एक्सिस पे ले लिया। बाकी आर अपॉन सी तो हमारे कांस्टेंट है, कोई इशू नहीं। फॉर ए गिवन आर अपॉन सी, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एफ इज प्रोपोर्शनल टू द बेरिंग कैरेक्टरिस्टिक नंबर म्यू एन अपॉन पी, दैट इज द स्ट्रेट लाइन प्लॉटेड। अब ये कर्व आता है एक बेरिंग्स का, स्टेबल अनस्टेबल, और बेरिंग्स मस्ट फॉलो दिस कर्व। अगर बेरिंग्स इस जोन के अंदर रहती हैं ऑपरेशन कंडीशन में तो हम कहते हैं स्टेबल जोन में है, और अगर इस जोन में बेरिंग आ जाएगी तो हम कहेंगे अनस्टेबल जोन में है। तो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग, जनरल बेरिंग हमेशा स्टेबल जोन में ऑपरेट की जाती हैं। अनस्टेबल जोन के अंदर अगर वो आएंगी तो फेल्योर होगा। अब इसको आप समझिए ये कैसे होगा। एक्स एक्सिस के ऊपर म्यू एन अपॉन पी है, म्यू कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो कि टेम्परेचर डिपेंडेंट है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये घटेगी, घटेगी, और टेम्परेचर घटेगा तो ये बढ़ेगी। म्यू की वैल्यू टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट है। और एन इज द स्पीड, और ये जो है पी लोड, और ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। Let me firstly read it. I think things will become clear, और हम डिस्कस कर लेंगे। सर ये पी लोड होता है या प्रेशर होता है यहाँ? ये बेरिंग प्रेशर होता है। बेरिंग प्रेशर होता तो लोड पर यूनिट एरिया होता है ना सर, जो प्रोजेक्टेड एरिया होता है उस पे ही तो लगता है। हाँ तो बताया तो बेरिंग प्रेशर, तभी तो कह रहे हैं बेरिंग प्रेशर होता है, बेरिंग प्रेशर नहीं अभी। ठीक है, ये आपने देखिए यहाँ पे, यहाँ क्या लिखा हुआ है, लोड पर यूनिट प्रोजेक्टेड एरिया मेगा पास्कल। यस सर, ये प्रेशर होता है, तो ये बेरिंग प्रेशर होता है। तो अब आ जाइए आगे। हाँ, द ऑर्डिनेट ए बी, द ऑर्डिनेट ए बी सेपरेट्स द फ्लूइड फ्रिक्शन और द थिक फिल्म लुब्रिकेशन रीजन on the right from the thin film lubrication or the boundary lubrication on the left. इस साइड में हम कहते हैं थिन फिल्म लुब्रिकेशन है, और इस साइड में हम कहते हैं थिक फिल्म लुब्रिकेशन है। और ये जो लाइन है ये डिवाइड करती है दोनों को, थिक और थिन फिल्म लुब्रिकेशन को। If the bearing is operating at any point in the thick film lubrication zone, यानी राइट साइड में, and some change in operating condition causes the temperature to raise, it will result lowering the coefficient of viscosity, lowering the parameter mu n upon p, and thus shifting the point operation to the left. अगर यहाँ का यहाँ ऑपरेट कर रहे थे, किसी वजह से इसकी वैल्यू टेम्परेचर बढ़ा, इसकी वैल्यू घटी, तो आप इधर की तरफ आ जाएंगे, और यहाँ से आप यहाँ आ गए, यहाँ से यहाँ आ गए। जब यहाँ इसके करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा था, इसके करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कम होगा। This shift will affect to reduce the coefficient of friction F, and thus produces the less heat and lowers the temperature. Lowering the temperature will cause
increase in the mu, and the original value of the parameter mu(n) upon will be restored. Thus, the operation in this zone of the thick film lubrication is stable, and hence it is also known as the stable lubrication. यहाँ से जब यहाँ से यहाँ पहुंचे तो ये वैल्यू कम हुई, ये वैल्यू कम हुई तो हीट जनरेशन कम हुआ, हीट जनरेशन कम हुआ तो टेम्परेचर डाउन हुआ, टेम्परेचर डाउन हुआ तो ये वैल्यू बढ़ गई, दोबारा से वैल्यू बढ़ी तो फिर दोबारा से वापस आ गए। तो आप इधर से इधर होते रहे, यहाँ से यहाँ आए, यहाँ से फिर इधर चले गए, ये होता रहेगा एज लॉन्ग एज आप राइट साइड में ऑपरेट कर रहे हैं। On the other hand, the region to the left of the ordinate AB, let us say कि आप इस लाइन में कहीं इधर ऑपरेट कर रहे हैं, यहां पे हैं। On the other hand, in the region left of the ordinate AB, a slight increase in the temperature would decrease the mu. Temperature बढ़ेगा, coefficient of viscosity घटेगी. The shift of the operation to the left and thus increase in the F. कहीं ऑपरेट कर रहे थे किसी वजह से इसकी वैल्यू टेम्परेचर बढ़ा, इसकी वैल्यू घटी, तो और आप इधर की तरफ जाएंगे, और जब आप इधर जाएंगे तो ये फिर और बढ़ जाएगा आपका ये, और ये बढ़ेगा तो और ज्यादा ऊपर चलते चले जाएंगे आप। Will increase the temperature, would decrease the mu. Shift of the point of operation will be the left, and increase in the F. Increase in the F will produce the more heat, further raise in the temperature, and further shift of the point of operation to the left, causing the increase F, and the region is of unstable lubrication. तो जैसे जैसे ये हीट बढ़ती जाएगी, हीट इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि बेरिंग में कूलिंग डिफिकल्ट हो जाएगी, और कूलिंग डिफिकल्ट हो जाएगी, अल्टीमेटली लुब्रिकेशन बर्न हो जाएगा, एंड दिस इज द अनस्टेबल जोन. Hence, we see that a small value of mu(n) upon P means that lubrication film is very thin, that there will be a greater possibility of some metal to metal contact, and hence the more friction. This point of C indicates that beginning of the metal to metal contact of the boundary lubrication. यहाँ जो point C है, तो हमेशा हम बेरिंग को कोशिश करते हैं कि राइट साइड में ही ऑपरेट करें, लेफ्ट में ना आए. अगर लेफ्ट में आ जाएगी तो इसको राइट की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा, और अदरवाइज इसके अंदर एक बार आ गई तो ये जोन अनस्टेबल जोन है और इसके अंदर लुब्रिकेशन बर्निंग के चांसेस हैं. तो दिस इज, अगर ये क्वेश्चन पेट्रोफ्स का क्वेश्चन आएगा तो ये आपसे डिस्कशन जरूर करवाया जाएगा स्टेबल एंड अनस्टेबल का, और ये आपको पता होना चाहिए स्टेबल अनस्टेबल जोन ऑफ द जनरल बेरिंग और द स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग्स. So, thick film lubrication. Lubrication is introduced into the top of the bearing and clockwise rotating the general pump into the wedge-shaped space and forces it to the other side. The minimum film thickness H0 occurs not at the bottom of the general but displays clockwise from the bottom. Clockwise or counterclockwise depending upon the rotation of the general. आप ऊपर से lubrication जैसे ही डालेंगे तो वो लुब्रिकेशन वेजिंग एक्शन के अंदर इंटर करने की कोशिश करेगा जनरल और बेरिंग के बीच में, और वही लुब्रिकेशन फॉर्म करेगा थोड़ी देर के अंदर, मेटल टू मेटल कांटेक्ट खत्म हो जाएगा और मिनिमम फिल्म थिकनेस H0 फॉर्म हो जाएगी. और H0 का फॉर्म होना जरूरी है. अगर H0 फॉर्म नहीं होगी देन देयर विल बी मेटल टू मेटल कांटेक्ट. So this was the general discussion about the sliding contact bearings. Now coming to the some design considerations. हम अगर डिजाइन की बात करें जनरल स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग्स की, while designing a general bearing there is a large number of parameters which a designer has to choose. They can be divided into two groups. First group has all those parameters which are either given or under the control of the designer. So these parameters which are under the control of the designer, viscosity आपके हाथ में है, load per unit projected area आपके हाथ में है, speed आपके हाथ में है, bearing dimension R, C, L, beta ये सब आपके हाथ में है.
The designer usually has no control over the load and speed of the journal because these two parameters are the application dependent. However, designer can choose the remaining parameters over which he has the control. The parameter in the second group dependent are the dependent parameter. Designer cannot control these parameters except indirectly by changing more from the first group. Coefficient of friction ये घटता बढ़ता रहेगा, टेम्परेचर राइज ये घटता बढ़ता रहेगा, फ्लो ऑफ ऑयल ये वेरी होता रहेगा, मिनिमम फिल्म थिकनेस वेरी होती रहेगी. So these are the different parameters which are related with the bearing design: viscosity, load, speed, bearing dimensions, coefficient of friction, temperature, oil flow, minimum film thickness. अब ये पैरामीटर्स कैसे निकालने हैं, कैसे कैलकुलेट करने हैं, तो इसके लिए पेट्रॉफ इक्वेशन तो आपके पास जो ड्राइव हुई है उसकी हेल्प के थ्रू ये रामौडी एंड बॉयड ने कुछ चार्ट्स डेवलप किए हैं. ये these are very important charts. Ramodi and Boyd have several relation plots between the non-dimensional parameters of the Summerfield number. तो ये चार्ट स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग के उसमें डिस्कस किए जाते हैं. हमारे पास बेयरिंग चार्ट अवेलेबल हैं जो मोहम्मद साहब यूज करेंगे, और हम अगर किसी एक आदमी को दे दें वो उसकी पीडीएफ बना के आप सब लोगों को शेयर कर ले, क्योंकि वही चार्ट आपको एग्जाम में भी यूज करने होंगे, वही चार्ट आप मोहम्मद साहब जो प्रॉब्लम्स कराएंगे उसमें भी यूज होंगे. तो इस काम को कौन करेगा? हाँ सर, मैं ले लूंगा सर. हेलो, आप कहाँ मेट्रो पे होगे? आप यहाँ कहाँ आओगे यार? मेट्रो तो रुकती भी नहीं है हमारे घर के पास. अच्छा, आपका घर दूर है क्या सर? जामिया की तरफ नहीं है? नहीं, जामिया की तरफ ही है. तो आप कहाँ से कैसे पिकअप करोगे? या तो मैं किसी को भेज दूंगा सर, या आप बताइए. मैं इसी लाइन पे ही रहता हूँ, जामिया स्टेशन के अगर पास में कहीं और है तो, या गाड़ी लेके आ जाएंगे. अच्छा, अगर ऐसा है तो हम किसी दिन फिर कैसे फिक्सअप कर लेंगे इसको, चार्ट जो है इसका कुछ फिक्सअप कर लेते हैं. हम आपसे कॉल पे फिक्सअप कर लेंगे और वो चार्ट्स आपको हम भिजवा देंगे. ठीक है? ठीक सर, ठीक सर. ये चार्ट, यही चार्ट्स आपको यूज करने होंगे बेयरिंग डिजाइन में. हम उनके कुछ चार्ट के सैंपल आपसे डिस्कस कर रहे हैं, मगर यहाँ जो डिस्कस कर रहे हैं ये थोड़े से अलग हैं, और हम जो भेजेंगे वो मोहम्मद साहब डायरेक्ट उसी को यूज करेंगे डिजाइन में. वैसे वही चार्ट्स हैं. वेरी फर्स्ट लेट अस से विस्कोसिटी चार्ट. अब विस्कोसिटी चार्ट क्या है? ये ऑपरेटिंग टेम्परेचर वर्सेस जो है एब्सोल्यूट विस्कोसिटी, ये अलग अलग ऑयल्स के लिए ये चार्ट होते हैं. तो ये रामौडी बॉयड में नहीं आते हैं, तो स्टैंडर्ड विस्कोसिटी चार्ट है. ऐसे ही नंबर के हिसाब से किस टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग विस्कोसिटी क्या होगी, ये चार्ट फॉर एग्जांपल. अब लेटेस्ट से ये हमारे जो रामौडी बॉयड चार्ट्स हैं, एक तो मिनिमम फिल्म थिकनेस के ऊपर है, दूसरा चार्ट आपका फ्रिक्शन वेरिएबल्स के ऊपर है, और तीसरा चार्ट आपका ल्यूब्रिकेशन फ्लो के ऊपर है. बस हाँ, ये है आपका. तो व्हाट इज मिनिमम फिल्म थिकनेस? रामौडी बॉयड चार्ट्स के बारे में अगर हम बात करें तो मिनिमम ऑयल फिल्म थिकनेस कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द चार्ट प्लॉटेड फॉर द फुल जर्नल बेयरिंग एज शोन इन द फिगर. From this chart, for the known value of the Summerfield number, try to understand this chart. For known value of the Summerfield number, a non-dimensional film thickness parameter H0 upon C can be obtained, and thereafter the minimum film thickness H0 can be calculated for the known value of the radial clearance C. A journal bearing is usually designed for the two conditions: minimum power loss due to friction and maximum load carrying capacity. Figure shows the conditions by the two separate curves, dotted line, the zone between the boundaries defined by here we have the curves for the film thickness versus Summerfield number. दो फॉर्म में आपको कम मिलेंगे, L/D रेशियो बेयरिंग के बाय रेफरेंस में, लेंथ वर्सेस डायमीटर
and bearing angle. You see here, this on the x-axis you have the Summerfield number. Z, don't be confused with the Z. This is Z is nothing but the mu, coefficient of viscosity. तो x एक्सिस पे समरफील्ड नंबर है और y एक्सिस पे H0/c है, मिनिमम फिल्म थिकनेस। अब ये जो कर्व बने हुए हैं तो ये L/D 1/4, L/T 1/2, L/D 1, L/D इंफिनिटी। तो ये डेटा है आपके पास। तो इसके करस्पॉन्डिंग समरफील्ड नंबर की करस्पॉन्डिंग आप L/D रेशियो क्या है, आप H0/c निकाल सकते हैं। या ये कर्व इस फॉर्म में भी अवेलेबल होते हैं, समरफील्ड नंबर और ये आपका मिनिमम फिल्म थिकनेस, बेरिंग एंगल 60 डिग्री, 80 डिग्री, 100, लाइकवाइज अप टू 360 डिग्री। ये बेरिंग एंगल्स के हिसाब से ये कर्व्स हैं। ये समरफील्ड नंबर x एक्सिस पे है, मिनिमम फिल्म थिकनेस। तो ये मिनिमम फिल्म थिकनेस के कर्व्स हैं। This is also the same thing. Position of the minimum film thickness versus Summerfield number, L/D ratio. ये वाला लास्ट वाला जो कर्व है, पोजीशन ऑफ द मिनिमम फिल्म थिकनेस 5 डिग्री, जो एटीट्यूड एंगल की जो बात आ रही थी 5 डिग्री, वो अगर निकालना है आपको तो फॉर ए गिवन बेरिंग कैरेक्टरिस्टिक नंबर L/D रेशियो करस्पॉन्डिंग आप H0 कहाँ पे आ रहा है आपका वो पोजीशन मिल जाएगी। तो ये 3 तरह के चार्ट्स हैं, चार्ट्स आपको हम देंगे। वैसे ये चार्ट शिगले वाला है, हमने शिगले नंबर लिख दिया। ये 2 चार्ट्स हमने, ये भी शिगले का ही है, ये चार्ट कहीं और से लिया था, शायद शिगले से नहीं लिया था। देन द फ्रिक्शन वेरिएबल, दूसरी सेकंड कैटेगरी ऑफ द चार्ट, फ्रिक्शन वेरिएबल। इन ए फ्रिक्शन वेरिएबल चार्ट शोन इन द फिगर, the dimensionless friction variable is plotted against the Summerfield number. The coefficient of friction in a bearing is one of the important parameters which decide the energy lost in the bearing. Although the initial assessment of the coefficient of friction is generally done by the Petrov's equation, its actual value is estimated from the friction variable. Coefficient of friction variable Fv into C/R. Fv coefficient of friction variable, तो ये जो आपका आ जाएगा उल्टा R/C हो जाएगा, Fv = R/C। 2 चार्ट होंगे, L/D रेशियो और एंगल बीटा। यू सी हियर, x एक्सिस के ऊपर वही आपका समरफील्ड नंबर आ गया, y एक्सिस के ऊपर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वेरिएबल R/C F। L/D रेशियो के करस्पॉन्डिंग ये वैल्यू आपको मिल सकती है। समरफील्ड नंबर नोन है, आप यहां से जाइए, इधर आ जाइए। बेरिंग एंगल के करस्पॉन्डिंग समरफील्ड नंबर नोन है, पर्टिकुलर बेरिंग एंगल नोन है, आपको कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंगल, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वेरिएबल नोन मिल जाएगा। थर्ड इज द लुब्रिकेंट फ्लो। Lubricant flow, that is Q, the pressure developed in the bearing and its load carrying capacity depends upon the volume of the lubricant oil fed into the bearing. These charts are plotted as a dimensionless parameter called the flow variable as shown in the figure, are based on the following assumption. Lubricant is supplied at atmospheric pressure. There is no lubricating oil groove. There is no side leakage of the oil. ये भी कुछ assumption ले लिए गए हैं, which is not practically possible, but for simplification. So flow rate is given as FLV RCN into RCNL. FLV flow variable, which will be Q/RC, which is FLV
which variable Q upon RCNL. Q upon RCNL. Here we have the flow variable versus the Summerfield number. Load L by D ratio, bearing angle. Q upon RCNL y axis पे में है और z axis पे again x axis पे again you have Summerfield number. So L by D ratios are there. You can get the flow variable. So likewise, these charts are there. You please refer the Bhandari book. You will find the chart there. Somewhere some tables are also given. And somewhere you will find so much of the problems he will be discussing. He will be discussing only on the charts. So I will be arranging by the tomorrow. I will be engaging some numerical problems, and as Mohammad Sahab, I will ask him to join the class, take or engage you in the next class. या ऐसा कर दे सकते हैं कि आज मोहम्मद साहब को कल बुला लें, देख लेंगे हम जैसा भी होगा, मगर कल आपके पास चार्ट नहीं रहेंगे. One more topic in continuation to इसको छोड़ देते हैं. इस टॉपिक को हम लेंगे नेक्स्ट ट्यूसडे को. नेक्स्ट ट्यूसडे को इस टॉपिक को लेंगे. नाउ वी कमिंग टू द डिजाइन प्रोसीजर. अब डिजाइन प्रोसीजर क्या होगा स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग के अंदर, इसको आप लोग स्टेप बाय स्टेप लिख लीजिएगा. ये कि बुक्स में आसानी से मिलेगा नहीं शायद. The design of a general bearing involves a large number of parameters. We first select. आप देखेंगे आसमा साहब इसी तरह से प्रॉब्लम्स आपको करवाएंगे. We first select the reasonable values of the various parameters and then apply the available equation to establish their validity. Ramodi and Boyd have suggested the following procedure to design the bearing using the various design charts. Number 1. Select a suitable value of L by D ratio. ये आपको बेरिंग जो प्रॉब्लम की लैंग्वेज से निकालना होगा. Select a suitable value of L by D ratio. Determine the length of the bearing and the bearing pressure comparable to the maximum value given in the bearing data. Step number 2. Select a suitable lubricating oil and its viscosity at operating temperature, which is limited to 75 degrees centigrade, because most of the oil get oxidized above this temperature. Step number 3. Select the clearance ratio C upon R. Step number 4. Determine the characteristic bearing characteristic number mu Zn upon P लिखा है, mu n upon P आप कहिए इसको. Z that is coefficient of viscosity, mu n upon P. It should be greater than the minimum value. Determine the Summerfield number and thereafter the minimum field thickness from the chart. म्यू एन अपान पी जब निकल जाएगा उसके बाद आप म्यू एन अपान पी निकलने के बाद मिनिमम फिल्म थिकनेस चार्ट से निकाल लेंगे. द मिनिमम फिल्म थिकनेस शुड बी कंपैटिबल विद द सरफेस फिनिश एंड इट शुड बी मोर देन द 1/4 ऑफ द रेडियल क्लियरेंस. Select the suitable bearing material from the bearing data based upon the bearing pressure selected and calculate the general diameter if not given. Then calculate the coefficient of friction for the predetermined value of the Summerfield number. Calculate the coefficient of friction for the predetermined value of the Summerfield number, and with that determine the
heat generated and heat dissipation capacity to establish the thermal equilibrium. Calculate the quantity of the lubricating oil required from the chart, and then finally calculate the minimum film thickness. Minimum film thickness will be आपको हो सकता है प्रॉब्लम्स के अंदर कुछ आगे पीछे चीजें घुमाई जाएं और मिनिमम फिल्म थिकनेस के बजाय कोई दूसरा पैरामीटर निकालना हो, वरना हमें मिनिमम फिल्म थिकनेस ही निकालनी होती है नॉर्मल डिजाइन प्रॉब्लम के अंदर. So this will be a standard procedure which will be used for the sliding contact bearings. Theory part I have discussed. One of the part I have left that I will be taking on the next Tuesday. Tomorrow we will be solving some numerical problems on the sliding contact bearing. So let me stop it here today. I will take the attendance. क्या डेट है आज भाई? आज डेट क्या है? 13 जुलाई सर. 13 सर. 13. Please attend your call. आमिर खान, अब्बास मेहदी, अफजल. यस सर. अफजल खान. अकमल हुसैन, अंकित कुमार. यस सर. अंकित. अरमान. यस सर. अतीक. यस सर. ब्रिजमोहन. यस सर. गजाला. यस सर. गजाला, तुम्हारा नाम गजाला है गजाला है? गजाला है. क्या है सर? गजाला. नो, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी. अच्छा, इसमें गजाला लिखा हुआ है. चलो खैर कोई बात नहीं, ठीक. हारून. हबीबुल्ला. हिजबुल्ला. हिजबुल्ला. इजहार. यस सर. इजहार, तुमने हमें रिसिप्ट नहीं भेजी अभी अपनी? सर मैंने मेल कर दिया सर. मैं एक बार फिर कर दूंगा सर. फिर मेल कर देना आप हमें. ठीक है सर. कामरान. यस सर. अच्छा ललित, कुछ अटेंडेंस तुम्हारे पास है इनकी? हाँ सर, 1-2 क्लास की होगी हमारे पास. हाँ, वो अटेंडेंस संभाल के रखना, वो हम बाद में आपसे ले लेंगे. ठीक है. खुर्शीद. ललित. यस सर. मजहर. आरिफ. यस सर. मोहम्मद आरिफ. तानिश. प्रेजेंट सर. सरवर. सरवर. तौकीर. यस सर. उमैर. यस सर. ताजवर. सर. प्रेजेंट सर. तनवीर. यस सर. आरिफ, सॉरी आतिफ. यस सर. इमरान. इंतजार. यस सर. आसिम. शाहरुख. प्रेजेंट सर. कासिम सर. इतनी देर में यार कहाँ पैसेंजर ट्रेन से आ रहे हो? जमील.
जमील। यस यस सर, जमील सर। तुम्हारा नाम ये Yes, क्या जमील है जमील है? सर जमील है, वो स्पेलिंग मिस्टेक है सर। नहीं, स्पेलिंग मिस्टेक बहुत ज्यादा है तुम्हारी क्लास में, क्या चक्कर है भाई? मोहम्मद जायद। जायद। नसीम। यस सर। नजीम। नजीम। शुएब। शुएब। आरिफ अंसारी। यस सर, 35 मोहम्मद आरिफ अंसारी। ठीक है। फैजान शब्बीर। यस सर, मोहम्मद फैजान साबिर। फैजान साबिर। आशिफ खान। प्रेजेंट सर। सनाउल्ला। यस सर। शाह फहद। यस सर। जहीरुद्दीन। यस सर। आरिफ रफी। यस सर। फरहान फहीम। यस सर। महेशर। प्रेजेंट सर। राशिद। यस सर, मोहम्मद राशिद। मुस्तफा। रहमान सबा। यस सर। साबिर खान। प्रेजेंट सर। साइम अली। साइम अली। हाँ हेलो आदिल। वालेकुम सलाम। जरा हम एक क्लास ले रहे हैं, क्लास खत्म कर लें, आपसे कॉल करते हैं दोबारा से, हम आपको कॉल बैक करते हैं। साइम अली। सलीम। सलीम। ये कौन है? शाह परवेज। शहजाद। शहजाद। शहनवाज। यस सर। शहजादा मुअज्जम। यस सर। तारिक। शुएब अख्तर। यस सर। शुएब खान। यस सर। शुभम श्रीवास्तवा। सोनित। यस सर, सोनित। सुहेल। यस सर। तौसीफ आलम। वसीम खान। वसीम सैफी। यस सर, वसीम सैफी। आपका क्या नाम है? सर वसीम सैफी। थैंक यू भाई। वसीम सैफी। यस सर। आपका प्रोजेक्ट किसके साथ है? सर आपके साथ है। हमसे एक बार मिले आप? सर कॉल किया था सर, कॉल किया था। अच्छा, आप अभी क्लास के बाद रुके रहिए जाइएगा नहीं। अभी क्लास में रुके आप, अभी हम क्लास के बाद आपसे बात करते हैं। ठीक है, ठीक है। योगेंद्र। यस सर। यूसुफ। यस सर। जैद आलम। जियाउर रहमान। अफसर अली।
प्रेजेंट सर। सुफियान, सर अब्दुल समद भी है शायद। मोहम्मद नबी, सचिन राघव, प्रेजेंट सर, सचिन राघव। राम बाबू, राम बाबू, नतीक, नतीक इकबाल, नरेश चंद, अब्दुल समद, प्रेजेंट सर। अमरजीत, यस सर, प्रेजेंट अमरजीत सिंह। फैजान साबिर हैं, चले गए? फैजान साबिर हैं, चले गए?